Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is Introduction to Internet. So let's start the chapter. Learning objectives. Internet, uses of Internet, terms related to Internet. Children, if you want to talk to your friend without meeting him, what will you do? You will take the help of telephone or mobile phone to communicate with your friend. It shows that you are connected with your phone to your friend's phone. In the same way, computers can be connected with each other. These computers are connected through telephone wires or cables, satellites, and various other ways. When computers are connected with each other, you send and receive the messages, share the information and perform other वर्क्स. तो बच्चों, सपोज आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप कैसे करोगे? आप उसे कॉल करोगे, ठीक है. इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है. अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजनी है या कोई मैसेज भेजना है तो हम नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं अपने घर बैठे दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है. इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. Millions of computers around the world are connected through the internet by using telephone wires or some wireless media of communication. The computers which are connected to the internet can easily communicate and share the information with each other. They are used to send and receive messages. अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है? वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्टेड होता है. क्योंकि आप अपने घर पे बैठे हो, आपका फ्रेंड अपने घर पे बैठा है, ठीक है. आपकी वायर्स तो कनेक्टेड नहीं हो सकती, तो आप किससे कनेक्टेड करते हो? आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो. इंटरनेट के थ्रू ही आप अपने कंप्यूटर से अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे मेल भेज सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है. यूज़ ऑफ इंटरनेट. Internet is very useful for everyone as it has become an important part of our everyday life. Some of the uses of the internet are as follows. Searching. There is a lot of information on the internet. Search engines make this information easier to find. All you have to do is to type one or more keywords and the search engine will look for रिलेटेड वेबसाइट. अब इंटरनेट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सपोज आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट के थ्रू उसे सर्च करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. अब आप इन्फॉर्मेशन कैसे लोगे? आप सर्च इंजन पे जा करके आप उस सर्च बार पे उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड को टाइप करोगे. सपोज आपको किसी मूवी के ऊपर या किसी गेम के ऊपर कोई टॉपिक पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? उस गेम का नाम वहाँ पे टाइप करोगे. फिर आप देखोगे एंटर दबा के तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी उस गेम से रिलेटेड, ठीक है. ईमेल, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज़ अ वे टू सेंड और रिसीव मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट. Almost everyone who uses the internet has his/her own email account, usually called an email address. ईमेल जिसे फुल फॉर्म में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है. ये एक तरीका है अपने मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने का. अब जो भी इंटरनेट यूज़ करता है उसकी अपनी एक ईमेल आईडी होती है ताकि आप उस आईडी पे मैसेजेस रिसीव कर सको और उस आईडी से आप मैसेजेस भेज सको. Facts. Internet is a worldwide network of computers. Internet is also known as the net. We can avail many services on the internet. इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क माना जाता है कंप्यूटर का, ठीक है. इंटरनेट को हम शॉर्ट में नेट भी कहते हैं और इसके थ्रू हम काफ़ी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर another way to connect and share with your family and friends online. Rather than sharing with just a few people over email, social networks make it easier to connect and share with many people at the same time. Facebook is the world's largest social networking site with more than 1 billion users worldwide.
अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग होता है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट पे बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो, क्योंकि मेल में क्या होता है, आप लिमिटेड लोगों के साथ ही चैट कर सकते हो और उन्हें मेल या मैसेजेस भेज सकते हो। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, आप इसमें अपने फ्रेंड्स के साथ तो फ्रेंड्स बना ही सकते हो, इसके साथ साथ आप जो बाकी के वर्ल्ड में बाकी के लोग हैं उनके साथ भी आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो उन्हें और उनके साथ चैट कर सकते हो। Chat and instant messages. Chat and instant messages IM are short messages sent and read in real time, allowing you to converse more quickly and easily than email. These are generally used when both or all people are online, so your messages can be read immediately. ठीक है, अब चैट और इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूसरे लोगों के साथ चैट कर सकते हो और उनके साथ आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है दूसरे लोगों के साथ कन्वर्स करने में क्विकली और इजीली देन ईमेल। ठीक है, ईमेल में क्या होता है, आप वेट करते हो दूसरे पीपल का कि कब वो आपका मेल ओपन करेगा, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन चैट और इंस्टेंट मैसेजेस में क्या होता है, जब दो लोग साथ में ऑनलाइन होते हैं तो साथ में वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। रिजर्वेशन, यू कैन बुक एयरलाइन, रेलवे, बस और इवन मूवी टिकट्स थ्रू द इंटरनेट। ठीक है बच्चों, इंटरनेट के थ्रू आप टिकट्स भी बुक कर सकते हो। आपको कहीं जाना है तो आप रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हो, एयरलाइन की टिकट्स बुक कर सकते हो, इवन आपको मूवी देखनी है तो आप ऑनलाइन मूवी की टिकट्स भी बुक कर सकते हो। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ डन अ रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम। वी कैन डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन विदाउट गोइंग टू अ बैंक। अब ई बैंकिंग जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट गोइंग टू अ बैंक, मतलब नियर बाय बैंक जाए बिना भी आप अपनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हो ई बैंकिंग के थ्रू। फैक्ट्स, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स अस इंटरनेट कनेक्शन। ISP जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन। ऑनलाइन एजुकेशन, online education through e-learning websites has made education easily accessible. All the study materials and information are available to us on the internet. अब इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन भी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज हम स्कूल नहीं जा पाए तो हम ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, इजीली जो भी हमसे टॉपिक रह गया है उस टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शॉपिंग, nowadays we can purchase anything using the internet. We can sell and purchase old or new things through internet. अब इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग भी जो है वो आसान हो गई है। ठीक है, हम घर बैठे काफ़ी चीज़ें किसी वेबसाइट पर देखकर मंगवा भी सकते हैं और अपने जो पुरानी चीज़ें उनको हम बेच भी सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स कैन बी सर्च ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, पहले लोग न्यूज़पेपर में देखते थे या इधर उधर अपना CV लेकर के जाते थे, फिर उन्हें CV वो ड्रॉप करते थे, फिर उन्हें वहाँ से कॉल आता था इंटरव्यू के लिए। लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू क्या हो गया, हम अपनी जॉब्स इजीली सर्च कर सकते हैं घर पे बैठे ही। लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड वॉचिंग मूवीज़, इंटरनेट हैज़ अ वाइड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड मूवीज़ विच वी कैन लिसन, वॉच और डाउनलोड। ठीक है, इंटरनेट में बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। इसी तरह से हम मूवीज़ भी देख सकते हैं और इवन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। डू यू नो ई बैंकिंग इज़ नोन एज नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। बच्चों, ई बैंकिंग जो है वो जानी जाती है नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी। टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, ISP, in order to connect the computer to the internet, you need a connection. Internet service provider ISP is a company that provides internet connection. Some popular ISPs are Airtel, Tata Indicom, Reliance Communication. They also provide hardware devices such as modem or router to connect your computer to the internet. अब आपको अपने कंप्यूटर में नेट चलाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको कनेक्शन की ज़रूरत होगी और वो आपको फॉलोइंग जितने भी आपके ISP प्रोवाइडर है ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि मॉडेम प्रोवाइड करते हैं, आपको राउटर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इजीली अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सको। www,
World Wide Web (WWW) is the largest collection of information on the internet. It contains millions of websites that provide information in the form of text, animation, pictures, and videos. The various pages are connected using links and can be accessed through the internet. बच्चों www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, ठीक है। इसके थ्रू हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसमें काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एनिमेशन हो, या कोई पिक्चर या फिर कोई वीडियो हो उसके ऊपर, ठीक है। वेरियस पेजेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू किसी लिंक के, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। वेब ब्राउज़र, as you know that we get the information on internet from different websites. Web browser is a software that helps you to open the different website, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो होता है वो आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करता है डिफरेंट वेबसाइट की, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। Some most commonly used web browser are website. It is a collection of related web pages linked to one another. It provides the information about many things such as person, business, education, and many other things. It seems to be a book that contains several pages. ठीक है, वेबसाइट जो होती है वो एक तरह से एक बुक की तरह वो काम करती है। जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं और बहुत सारे पेजेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, इसी तरह से वेबसाइट भी आपकी एक बुक का काम करती है जिसमें आपके डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। फैक्ट्स, टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है www जो है वो इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। नाउ वेब पेज, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज विच कंटेन्स टेक्स्ट, images, audio, video, animation, and links. The pages that make up the World Wide Web are known as web pages, ठीक है। अगर वेबसाइट आपकी बुक है तो वेब पेज उसके क्या है, पेजेस है, ठीक है। जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसके साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक पेजेस भी ओपन हो जाते हैं जिसे हम वेब पेज कहते हैं। इसमें आपके टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, ऑडियो होते हैं और एनिमेशन होते हैं, और बाकी के लिंक्स भी होते हैं जिन पे आप क्लिक करके दूसरे ऑप्शन पे या दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। होम पेज, it is the first page that you would see on the website, also known as the welcome page. It is from here that you would start the navigation of various other pages of the site. होम पेज जो होता है, जो आपका फर्स्ट पेज होता है जब आप किसी साइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो वो आपका होम पेज कहलाता है। जो फर्स्ट पेज आपके स्क्रीन पे आता है वो आपका होम पेज कहलाता है। इसको वेलकम पेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप क्लिक करके बाकी के पेजेस में जाते हैं। सर्च इंजन, अ वेब सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट हेल्प्स यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन World Wide Web. The search results are usually presented as a list of links. The links may point to text, images, audio और वीडियो फाइल्स। अब सर्च इंजन में आप क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हैं, सर्च इंजन पे जाकर सर्च इंजन के जो सर्च बार होता है वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई कीवर्ड आप टाइप करते हो, फिर आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको जो भी सूटेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, सूटेबल लिंक पे जा कर के क्लिक करते हो ताकि आपको उस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। हाइपरलिंक्स, these are the links to other section of the website. They are called hyperlinks, ठीक है। ये जो लिंक्स होते हैं ये दूसरे सेक्शन ऑफ वेबसाइट की लिंक होती हैं, इन पे आप क्लिक करते हो तो आप के सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है उस लिंक से रिलेटेड, इसे हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। A hyperlink is a mechanism by which a web page is linked to another related web page. Text images can be made into hyperlinks. A hyperlink is usually underlined. If you move your mouse over a hyperlink,
it will usually change to the shape of a hand. Clicking on the hyperlink takes you to a different page. ठीक है बच्चों, आपने कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई साइट खोली, अब आप जब उसको स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो वहाँ पे छोटे छोटे आपको लिंक्स नज़र आते हैं। ठीक है, जब आप उन लिंक्स के साथ ओपन करते हो या उनके ऊपर आप उसको अपने माउस को लेके जाते हो तो वो एक हैंड के रूप में बन जाता है। ठीक है, फिर आप जब उस पर क्लिक करते हो तो आप उसको ओपन करके देखते हो तो जो हाइपर लिंक है वो आपको उस वेब पेज से रिलेटेड एक और वेबसाइट खोल के दे देता है ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से मिल जाए। Facts: www is known as the web or W3. Internet is like a library that contains millions of books. A web page is created using a language called HTML hypertext markup language. ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्ट बताया गया है कि www जो है उसे एज ए वेब भी जाना जाता है और W3 भी जाना जाता है। इंटरनेट को कहा गया है लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में आपकी बहुत सारी बुक्स होती हैं वैसे ही इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एक वेब पेज जो है वो क्रिएटेड होता है यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML। ठीक है, कोई भी वेब पेज जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उसको हम HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पॉइंट्स टू रिमेंबर: इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. Internet Service Provider ISP is a company that provides internet connection. World Wide Web (WWW) is the largest collection of information on the internet. Web browser is a software that helps you to open the different websites. Website is a collection of related web pages linked to one another. The pages that make up the World Wide Web are known as web pages. Home page is the first page that you would see on the website. A hyperlink is a mechanism by which a web page is linked to another related web page. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the exercise by yourself.